Yes, big hello to all the YouTube people who are watching this session. Cosmic connection with human body. ये आज का बहुत interesting topic है. And today we are having साहिल भैया with us. साहिल भैया जिनके सारे सेशन इतने ज्यादा लोग पसंद करते हैं. And जो एक उनका कोई भी सेशन उठा लो वो 1500 व्यूज ज्यादा मीन्स कुछ दिन के अंदर 1500 लोगों से ज्यादा देख ही लेते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स. इतना ज्यादा उनको लोग सुनते हैं. एंड सेशन के बाद भी साहिल भैया का इतना साहिल भैया का नंबर दो, साहिल भैया का नंबर दो. मीन्स सो मेनी पीपल आर so much connected with him, and today he is here. I'm so excited. So साहिल भैया वेलकम टू द सेशन. कुछ जो फॉर्मेलिटीज हम लोग करते हैं वो मैं अभी कर देता हूँ, देन वी विल स्ट्रेट कम टू द सेशन. साहिल भैया जैसे आपको पता है जब आप लास्ट टाइम आए थे उस टाइम से लेकर अब तक वी आर डूइंग इट रेगुलरली. यही पर्पस है कि कोई भी ये सेशन देखे उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, उसकी लाइफ सेलिब्रेशन बन जाए, दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल लाने की कोशिश करे और एक स्ट्रेस फ्री और वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करें. गुरुदेव का विजन है ये. गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बनाया हुआ है. बहुत जोर शोर में लगे हुए हैं इसी को आगे बढ़ाने में. एंड जैसे आपको पता है बहुत इनफॉर्मल सेशन रहता है ये. एंड साहिल भैया लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल हु आर वाचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसे तो बहुत मीन्स आप जब पिछले बार आते हो तो अब आते हो तो उसमें करीब कुछ लोग और ऐड हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बता दूं मैं. बाकी सब लोग तो आपसे परिचित है ही हैं. सो टॉकिंग अबाउट साहिल भैया, Sahil ji is a graduate from IIT Kharagpur, founder and managing director of Google recognized and award winning startup The Practical Jyotish. He is a certified counselor, astrology expert from IPHM, International Practitioners of Holistic Medicine, UK, and HDCBM, India. He has traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He continues to help people and conduct astrology sessions through various online platforms after lockdown. He is a very active and popular Art of Living teacher. He conducts various Art of Living programs such as breath and meditation workshops, youth workshops, corporate workshops, wellness and de-addiction programs. Today he is here with us. I welcome you, Sahil Bhaiya. Sahil Bhaiya, आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है कॉस्मिक कनेक्शन विथ ह्यूमन बॉडी. वो क्या कनेक्शन रहता है भैया, इसके बारे में हमें बताया. यस साहिल भैया, ओवर टू यू. Yes, so Abhishek, you can make me co-host because I have to share few slides also. Okay, so let us chant Om 3 times before starting the session. Let us close our eyes. आंखें बंद करते हैं. Take a normal breath in and breathe out. One more deep breath in and breathe out. Fourth Om, breathe in. Om Namo Pranavarthaya Suddha Jnane Kamudaya Nirmalaya Prashantaya Dachinamurtaye Namaha.
Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So yeah, today we have a very interesting topic, cosmic connection of human body. So this is a topic which is already explained by Gurudev. So today whatever I'll be speaking, उसमें से बहुत सारा content जो गुरुदेव ने already explain किया है. It is something that. Okay, so let us start with our 5 fingers. हमारे हाथों में जो 5 उंगलियां होती है, they are very important because ये पांचों उंगलियां पांचों ग्रह से कनेक्टेड है, 5 मेन ग्रह से कनेक्टेड है. So let's keep it थोड़ा सा discussion type, जिससे कि इंटरेक्टिव रहे. So can anybody write in the chat box अंगूठा, what does thumb signifies? Yeah, let's see. Abhishek, I am in spotlight, right? Somebody has written. Guruji. Yeah, no, not Guruji. So yeah, thumbs mark. Shashank, very nice. Well, one clap for Shashank. So जैसे हम लोग कभी जीतते हैं ना, कुछ अच्छा करना होता है या जीतते हैं, तो we say yeah, thumbs up. Yeah, जीत के आना. So thumb signifies Mars, victory. So Mars is a planet of, हर planet की एक personality होती है, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया. So Mars is the planet of energy. Okay, it's like a warrior. So Mars signifies energy, victory. Thumb is the karaka of victory. So we will come to a lot of mudras and pranayams also, जो उंगलियों से connected है. Let's come to the second part. So second finger is, anybody will write Jupiter. Very nice. Yeah. तो हम किसी को इशारा गाइडेंस देते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ. So we use this finger, right? So yeah. So this finger is connected with Jupiter. फिर third finger is connected with Saturn. सबसे बड़ी होती है तीसरी फिंगर, बीच वाली फिंगर. ओके, क्यों? Saturn is connected with सेवक. तो सेवक के लिए सब थोड़ा बड़ा शरीर, थोड़ी बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए और सबसे बड़ा माना जाता है. तो या middle finger is connected with Shani, Saturn. Then comes the ring finger. So ring finger is connected with Sun. Yeah, very nice. तो रिंग फिंगर में हम रिंग पहनते हैं. तो सन की पर्सनैलिटी क्या होती है? किंग. ओके, तो किंग, राजा गहने पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर, जितने भी गहने होते हैं, अंगूठियां होती है. तो रिंग फिंगर में हम ऐसा कुछ न कुछ पहनते हैं. देन कम्स द स्मॉल फिंगर, व्हिच इज वेरी इजी. Yeah, Mercury, very nice. So Mercury is about our communication skills, our intellect. Okay. So it is very interesting. Now you see carefully. So you must have noticed कि कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि ये उंगली यूज नहीं करते हैं. और जिन लोगों को नहीं पता है वो अभी से जान लो कि कोई भी आप पूजा करो ना, तो डोंट यूज दिस फिंगर. किसी ने गुरु पूजा फेस 2 किया हो तो उसको पता होगा, गुरु पूजा में जितनी भी चीजें करते हैं वो इन तीनों उंगलियों से करते हैं. इस उंगली को ऐसे करके वो लगता है. ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि ये उंगली किससे कनेक्टेड है? गुरु से. तो गुरु से हम गाइडेंस लेते हैं, हम गुरु से काम नहीं करवाते हैं. बाकी हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़ा अलग है. गुरु जी तो सबसे ज्यादा ही काम करते हैं, लेकिन इन जनरल पहले के जमाने में क्या था, गुरु से हम लोग केवल गाइडेंस लेते थे, गुरु से हम लोग काम नहीं कराते थे. सो वी नेवर यूज दिस फिंगर इन एनी पूजा, अदरवाइज अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरु से काम नहीं करवाया जाता है. इस फिंगर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मिडल फिंगर का, क्योंकि शनि है. ओके, और आप ध्यान दोगे कि आपकी बीच वाली फिंगर अकेले खड़ी रह सकती है, लेकिन ट्राई सन को, ये वाली रिंग फिंगर को आप अकेले खड़े करने की कोशिश करो, नहीं रहेगी. क्योंकि राजा को भी सेवक की जरूरत होती है. लाइक गुरु अकेला खड़ा रह सकता है, शनि अकेला खड़ा रह सकता है, लेकिन राजा अकेला खड़ा नहीं रह सकता है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इवन बुद्ध भी अकेला खड़ा रह सकता है, मरकरी, लेकिन राजा को सेवक और उसका बिजनेसमैन बुद्ध
चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, वजीर, या फिर या तो ये हो गई हमारी पांचों उंगलियां। फिर हमारा जो हाथ होता है ना, तो उसमें जो ये वाला पोर्शन होता है, इट इज कनेक्टेड विद वीनस एंड दिस पोर्शन इज कनेक्टेड विद मून। तो पामिस्ट्री अगर किसी ने देखा हो, सुना हो पामिस्ट्री के बारे में, तो बोलते हैं कि किसी का शुक्र का पर्वत बड़ा अच्छे से उठा हुआ है और इट्स लाइक वेरी नाइसली प्लेस्ड। तो यहाँ से हम हाथ देख के ही पता लगा सकते कि इसका वीनस काफी स्ट्रांग है। सेम इज विद द मून। किसी कुछ लोगों का एकदम ही पतला सा होता है, एकदम ही दबा सा, कुछ लोगों का एकदम उभरा हुआ बड़ा सुंदर सा होता है। तो वीनस एंड मून वी कैन फाइंड आउट थ्रू द हैंड। ओके, so let us revise. Mars, Jupiter, Saturn, Sun, Mercury, Venus and Moon. So हमारे 7 ग्रह आ गए सातों हाथ में। फिर राहु केतु आर लाइक डिफरेंट, दे आर डिफरेंट प्लैनेट्स। ओके, सो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चिन्ह मुद्रा करते हैं तो हम गुरु की उंगली को जोड़ते हैं और मंगल की उंगली को जोड़ते हैं। हैव यू नोटिस्ड? फिर हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास शक्ति, एनर्जी, डायनेमिज्म, पावर मिल जाए और विजडम, गुरु की विजडम मिल जाए, तो देन वी कैन डू एनीथिंग। सो या दैट इज अ सीक्रेट बिहाइंड चिन्ह मुद्रा। सो ऐसे ही देयर आर अदर मुद्रास आल्सो। सूर्य की मुद्रा होती है, वी यूज दिस फिंगर, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, other mudras also. But yeah, this thing I think everybody will remember now. Interesting, right? Yeah. So let me start sharing the PPT now. Okay, और किसी को कुछ क्वेश्चन आते रहे बीच में, तो you can start writing in the chat box. Yes, so we have already covered this one. Okay. Now we have zodiac signs. जो हमारी 12 राशियां होती है ना, वो भी हम हाथ से देख सकते हैं। तो आपके जो हाथ में ये अलग अलग वो बने हुए हैं, पर्वत टाइप के डिविजन्स बनी है, दे आर एक्चुअली 12 जोडियक साइंस। तो जो लोग पामिस्ट्री पढ़ते होंगे, they will be able to connect to it better. So this is little advanced level astrology, but just to for your knowledge कि 12 राशियां भी हमारे हाथ के अंदर होती है। 7 ग्रह और 12 राशियां सब हमारे हाथ से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे एक्यूपंक्चर के बारे में सुना होगा आपने, तो जो जिस राशि का होता है उस जगह पे ज्यादा प्रेस करने से उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज लाइक वन एप्लीकेशन। ओके, सो टुडे वी विल लर्न कि जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसे ये सैंपल कुंडली है किसी की। ओके, सो इसमें हमेशा जो ईस्ट डायरेक्शन में होता है ऊपर की तरफ, दैट इज द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे करके 12 भाव जो दिखते हैं ना कुंडली में, वो 12 के 12 भी हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। और इसका एप्लीकेशन ये है कि किसी की कुंडली में जिस भाव में थोड़ी सी दिक्कत है, जो भाव थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसको कैसी बीमारियां होंगी, मतलब उसका कौन सा बॉडी पार्ट वीक है और कौन सा बॉडी पार्ट स्ट्रांग है। सो या दिस इज द पीपीटी। हियर यू कैन सी कि जो हमारा पहला भाव होता है, फर्स्ट हाउस, दैट इज कनेक्टेड विद हेड, सिर और फोरहेड से कनेक्टेड होता है। तो किसी की कुंडली में अगर पहले भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, यू नो व्हाट विल हैपन, उसको बहुत सारे थॉट्स आएंगे। लाइक किस एक जने की कुंडली देखी थी मैंने, उसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर, वीनस, मरकरी, सैटर्न, 4 or 5 planets were sitting, and she used to have like so many thoughts, like sometimes Jupiter ka thought, sometimes Venus type thought. So there will be like a lot of confusion, a lot of thoughts. So yeah, so looking at the first house, you find out like what will be the like mental condition, mental status of that person. Then second house is connected with our nose, right eye, ears, kind of face also. तो फेस से रिलेटेड कुछ चीज पता। एंड सेकंड हाउस इज स्पेशली कनेक्टेड विद अवर टंग, टीथ एंड अवर टेस्ट एंड अवर स्पीच ऑल्सो। तो आप कुंडली से के सेकंड हाउस से देख के बता सकते हो कि इस
सेकंड हाउस कितना स्ट्रांग है या वीक है, उसमें कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, उस हिसाब से देख के बता सकते हो इस इंसान का फेस कैसे होगा, इस इंसान की स्पीच कैसी होगी, इस इंसान का टेस्ट, खाने का टेस्ट उसको क्या पसंद होगा। ऐसे किसी का राहु बैठा होता है सेकंड हाउस में, तो उसका मतलब खाने का टेस्ट बड़ा वैसा होता है, मतलब ही लाइक्स लॉट ऑफ तामसिक फूड। सो ऐसे करके फ्रॉम सेकंड हाउस यू कैन फाइंड आउट अबाउट face, right eye, and taste and speech. Third house is connected with shoulder and throat. जो हमारा गला गला होता है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में अगर कोई अच्छा प्लेनेट नहीं बैठा है, कुछ मेलिफिक इम्पैक्ट है, तो थायराइड रिलेटेड चीजें और या फिर थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो जैसे एज अ एस्ट्रोलॉजर व्हेन आई सी समबडी चार्ट स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई लुक एट ऑल द हाउसेस कि कौन से हाउस वीक हो रखा है और कौन सा हाउस स्ट्रॉन्ग है। सो फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड विद लंग्स, हार्ट, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद चेस्ट एंड ब्रेस्ट। ओके, सो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर काफी पाया जाता है। तो यू नो, लुकिंग एट द चार्ट, लुकिंग एट द फोर्थ हाउस की फोर्थ हाउस की कंडीशन कैसी है, कैन फाइंड आउट लाइक they will have some issues related with breast or breast cancer, something like that. Okay, so if anybody has that thing, definitely you should reach somebody. There are some really good remedies for connected to astrology for that also. Then fifth house is connected with our digestion, stomach, basically stomach, liver and upper abdomen. तो उससे आपका डाइजेशन, लाइक किसी का फिफ्थ हाउस गड़बड़ है तो उसको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड ऑल्सो सिक्स हाउस इज ऑल्सो समहाउ कनेक्टेड विद आपकी कमर, नेवल, वेस्ट एंड डाइजेशन। देन सेवंथ हाउस इज कनेक्टेड विद अवर जेनिटल्स, मोस्टली लोअर एब्डोमेन एंड जेनिटल्स। तो किसी को जेनिटल रिलेटेड इश्यूज या diseases hai, so that you can find out from seventh house also, and eighth house is also like similar, connected to our lower body parts and genitals. And ninth house is connected with our thighs and hips. Okay, 10th house is connected with our knees, most importantly आजकल घुटने से related चीजें, दिक्कतें लोगों को बहुत होने लगी, तो it is connected with 10th house, knees and back. Then 11th house is connected with our left ears and legs, हमारे पैर के साथ connected है. And 12th house is connected with our left eye and feet. So yeah, from horoscope, looking at the different houses, you can easily find out कि इसकी कुंडली में ये पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, बॉडी पार्ट, और ये थोड़ा वीक है. एंड समथिंग इंटरेस्टिंग आई हैव डन फॉर टुडेज सेशन, आई हैव टेकन अ सैंपल ऑफ अभिषेक Ranjan's Kundli. so let me show you Abhishek का कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है, कौन सी चीज वीक है. Okay, so yeah. So yeah, this is Abhishek's chart. So yeah, Abhishek, you tell me, what do you think कि what is weak in your body, what is strong in your body? Then let me tell you astrologically. मुझे ना कभी सुखासन में ज्यादा नहीं बैठ पाता हूँ, I guess legs is weak. Yes, so can you see अभिषेक का जो legs वाला हाउस है उसमें केतु बैठा है. केतु is a malefic planet. See, 12th house is feet, left eye, kind of legs also. Legs and feet are connected. So केतु is sitting in the feet or legs वाले हाउस में. So it is because of the केतु. And yeah, so this is what like in the second house also, you first house में अभिषेक के Venus बैठा है. So you know, Venus is the karaka of media and all this mass media, Instagram, Facebook, YouTube. Okay, and first house क्या होता है, head. तो अभिषेक के दिमाग में यही थॉट चलते रहते हैं कि कैसे YouTube में और अच्छा सेशन किया जाए, कैसे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्टोरीज में कैसे और अच्छा कंटेंट डाला जाए, how to do something more in this field. True. Isn't it, Abhishek? सही है ना? Absolutely. Yeah, so this is how like you can find out. And you can see कि second house is also decent. Jupiter is sitting in Leo with Mercury. Third house में थोड़ा सा गड़बड़ है. Sun is sitting in Virgo, लेकिन Mars Virgo में इतना strong नहीं होता. तो third house is related with throat, shoulder, and right ear. So maybe Abhishek, you have to be little careful with your throat, shoulder, and right ear related things. As an astrologer, I can suggest you.
यस। या शोल्डर से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है ना? हाँ मतलब बैठे बैठे तो गर्दन दुख जाती है। हाँ, so you have to be like little more careful. So that's how like you can find out किसका क्या है. ये And जुपिटर और मरकरी का क्या मतलब है, वो दोनों की? Jupiter and Mercury are like good together. थोड़ा सा एक्चुअली इतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन इट इज फाइन बिकॉज इट इज इन द लियो. तो लियो में दोनों फ्रेंडली होते हैं. तो सेकंड हाउस इज रिलेटेड विद योर फेस एंड राइट आई. सो या इट इज ओके, इट इज गुड ओनली. नाइन्थ हाउस में आई विल से कि नाइन्थ हाउस इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. एज यू कैन सी हेयर, डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिक्स्थ हाउस, सॉरी नॉट नाइन्थ हाउस. और उसमें क्या बैठा है अभिषेक, कैन यू सी? राहु। राहु बैठा है. सो यू मे हैव वाता imbalance related digestion issues, like वाता imbalance होने के chances बहुत high रहते हैं आपको, especially when you eat something. Okay, so maybe you can avoid वाता imbalance करने वाले फूड, जैसे कि क्रैकर्स, पापड़ जिसमें एयर एलिमेंट ज्यादा होता है, रॉ सैलड, रॉ फ्रूट्स. सो समथिंग जिससे वाता बढ़ता है ना, मे बी यू कैन कंसल्ट नाड़ी परीक्षा के डॉक्टर एंड you यस। can like vata imbalance is the issue for you in digestion. बाकी तो सब almost सही है. यस। Okay, so I hope this is like very clear. दोबारा से आप इसको सुनोगे और अपनी कुंडली में आप लगाओगे तो you will find some interesting things about your charts also. Okay. इसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में 12 राशियां भी होती हैं. तो it is like similar. It's called काल पुरुष कुंडली. So first house is related with Aries, which is related with head. ऐसे ही second, third, fourth ऐसे करके it is very similar to what we have covered here. Just इसमें houses है, उसमें राशियां है. And if you want to see it in more detail कि first house में और ज्यादा क्या आता है, तो it is brain, cerebral hemispheres, cranium, eyes, face, upper jaw, internal carotid arteries, thalamus, etc. Like it is the detailed explanation of what we have covered in the last to last slide. Second, like sixth house अभिषेक का था राहु. तो राहु की वजह से अभिषेक में find issues in abdominal region, large and small intestine, lower lobe of liver, spleen, duodenum, thymus secretions, places of bowels and pancreas. So these are little like sensitive points for him. Okay, so like that we can find out in detail. In detail हमें बताना लगाना होता है ना कि इस इंसान को हेल्थ में, बॉडी में इस चीज से रिलेटेड इशू हो सकता है और ये चीज स्ट्रॉन्ग है. So you can find out using this PPT. Then let's come to face. चेहरे पे आते हैं. यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं बीच में. It's getting little monotonous. हाँ, विशाल जी का क्वेश्चन आया है, हार्ट रिलेटेड बीमारी कौन से ग्रह में कहाँ बैठा होता है? हार्ट रिलेटेड, हार्ट की अर्थ, हार्ट दिल। yeah, fourth house I had already shown. Fourth house is related to chest, breast, heart. Okay, and also kind of Venus is related with heart and heart chakras. तो फोर्थ हाउस से यू कैन फाइंड आउट फोर्थ हाउस में कैसा कैसा प्लैनेट है, उससे फोर्थ हाउस की पोजीशन कैसी है, उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स के इंपैक्ट है, देन यू माइट हैव हायर चांसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड इश्यूज. या सैटर्न इन फोर्थ हाउस कॉज दिस. ओके, एंड एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन आया है, वो मैं रीड आउट कर ले रहा हूँ. या ये पूछ रहे हैं, लॉर्ड ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस आल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड और नॉट? डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ द हाउस also need to be considered. Like fourth house किसी का काफी messed up है, okay, लेकिन जो fourth house lord है, like suppose अभिषेक के चार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से. या ओके, तो अभिषेक का चार्ट सिक्स्थ हाउस में राहु बैठा है, ठीक है, लेकिन सिक्स हाउस में कौन सा नंबर है? 9. तो 9 नंबर से हमें देखना पड़ेगा 9 नंबर राशि कौन सी होती है. ओके, 9 नंबर राशि होती है धनु, सेजिटेरियस. सो नाउ वी हैव टू रिकॉल, हमें सब राशियां याद करनी पड़ेगी कि कौन सी राशि का लॉर्ड कौन होता है. तो धनु राशि का लॉर्ड होता है गुरु, जुपिटर.
तो अभिषेक का जुपिटर क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा है, वो भी लियो में, तो इट इज एट अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस. सो द इम्पैक्ट ऑफ राहु विल बी लेस. राहु का इम्पैक्ट काफी कम होगा. सो दिस इज हाउ वी सी कि लॉर्ड से कैसे, मतलब लॉर्ड अगर अच्छा बैठा है और मेलिफिक प्लेनेट है हाउस में, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है बेसिकली. ओके, सो yeah, so you keep typing the question. Let me move to the next slides. शिखा जी का क्वेश्चन आया है, भैया आपका कांटेक्ट नंबर पूछ सकता है? Yes, my contact number you can write 8900 266 433. Okay, so only WhatsApp message, no calling. Yeah, बिकॉज पूरे दिन मैं मीटिंग में ही रहता हूँ, तो दैट्स लाइक कॉल करोगे तो इट्स डिफिकल्ट, बट मैसेजेस आई रीड सोने से पहले एक बार मैं सबका रिप्लाई करता हूँ. ओके, सो या फेस पे हमारा कैसा क्या रहता है, तो मास रिप्रेजेंट्स आईब्रो. तो कुछ लोगों की आईब्रो बड़ी एकदम घनी होती है, एकदम सुंदर सी, विराट कोहली जैसे. सी यू कैन सी, वेरी इंटरेस्टिंग. विराट कोहली की आईब्रो देखिए, एकदम डेंस है. तो मास रिप्रेजेंट्स आईब्रो, तो विराट कोहली का मास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. एंड इट इज ऑब्वियस बिकॉज स्पोर्ट्स में आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मास वाली एनर्जी चाहिए. सो या फ्रॉम द फेस इटसेल्फ यू कैन सी कौन सा प्लेनेट किसका स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, फिर आंखें भी आपने देखी होगी कभी कभार. कभी कभार क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर इंसान की राइट आई और लेफ्ट आई में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है. एक थोड़ी सी बड़ी होती है, एक थोड़ी सी छोटी होती है. तो उससे आप पता लगा सकते हो, जो थोड़ी सी छोटी है तो इसका मतलब वो प्लेनेट थोड़ा सा वीक है. तो आपका जो सन होता है, सूर्य नाड़ी, नॉस्ट्रिल और राइट आई, दैट इज कनेक्टेड विद सन. एंड लेफ्ट आई एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज कनेक्टेड विद मून. तो ऐसा करके यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है. और इससे मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज याद आई कि आपने देखा होगा कि शादी में जो दुल्हन बैठती है वो दूल्हे के लेफ्ट साइड में बैठती है जनरली, राइट. जबकि पूजा के काम में राइट साइड में बैठती है लड़की, इन जनरल लेफ्ट साइड में बैठती है. तो इसके पीछे बहुत ही डीप साइंस है. यू वांट टू अंडरस्टैंड, सुनना चाहते हो ना, तो सुनो. तो हमारी जो लेफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट आई मेल में स्पेशली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज बेसिकली मेल में लेफ्ट साइड होता है इमोशन से रिलेटेड, मून से कनेक्टेड. ओके, in general भी left is connected with moon and emotions and right is connected with ego and sun. Okay, so when female is sitting at your left side, तो उनका जो राइट नाड़ी हो गया और आपका लेफ्ट नाड़ी हो गया, वो काइंड ऑफ मैच हो जाता है. तो उनका ईगो और आपके इमोशंस, दैट काइंड ऑफ बैलेंसेस द सिचुएशन. थोड़ा सा समझना, इट्स लाइक लिटिल साइकोलॉजिकल बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो व्हेन लाइक आपका इमोशनल पार्ट जा रहा है और उनका ईगो पार्ट आ रहा है, तो ये काइंड ऑफ बैलेंस हो जाता है. ओके, लेकिन व्हेन शी इज सिटिंग एट योर राइट, तो राइट इज सन, ईगो, एग्रेशन, एंड हर लेफ्ट इज इमोशंस, मून. तो जब आपका राइट पार्ट जाता है और उनका लेफ्ट पार्ट कांटेक्ट में आता है, देन इट वोंट वर्क. क्योंकि मेल आर एनीवेज लाइक ईगो ड्रिवन, थोड़ा सा उनका सन पार्ट, ईगो पार्ट स्ट्रॉन्गर होता है. फीमेल्स आर वेरी इमोशनल. तो आपका जब ईगो पार्ट और फीमेल का इमोशन पार्ट साथ आता है, देन इट डजंट वर्क. फिर लड़ाई होने के चांसेस होते हैं. तो हमेशा हमेशा इट इज अ टिप फॉर अभिषेक ऑल्सो, जब भी वाइफ के साथ बैठो तो वाइफ को लेफ्ट में बिठाना. राइट में बिठाओगे तो लड़ाई होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि योर ईगो विल मैच विद हर इमोशंस पार्ट. तो you want to keep emotion part, give emotion part to the female. So है interesting, got it, समझ में आया ना, this is very interesting. Okay, लेकिन जब पूजा होती है तो we kind of surpass all the things. So पूजा, कोई भी पूजा में बैठे हो, then female should sit in the right, otherwise in general in the left. तो वो आप खुद ही सोचोगे तो समझ में आ जाएगा. Bye. So yeah, then राहु रिप्रेजेंट्स अवर माउथ, मुंह को रिप्रेजेंट करता है. जुपिटर नोज, जुपिटर रिप्रेजेंट नोज. तो जिन लोगों की आप देखोगे ना, इनकी नाक बड़ी सुंदर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड लुकिंग एट देयर फेस कि यार इनका जुपिटर बड़ा स्ट्रांग होगा. जिन लोगों का जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है या काफी स्ट्रांग होता है, उनकी नाक एकदम एकदम प्रॉपर शेप में होती है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, बाल, हेयर इज कनेक्टेड विद केतु एंड काइंड ऑफ
Shani also. Similarly, teeth and jaw is connected with Shani. So yeah, this is about how to, from your face, how to find out the planets. Now let's come to the five senses. Okay, तो हमारी आंखें, eyes are connected with Mars because आंखों से ही we can see the things and we have to plan and yeah, आंखों से ही मतलब पहले के जमाने में ऐसे आंखें दिखाते थे पापा मम्मी तो बच्चे एकदम डर जाते थे. So that is the Mars energy. Okay, then our smell is connected with Mercury. Okay, our hearing, listening is connected with Jupiter. So that's why it is said कि जितना ज्ञान सुनोगे उतना आपका गुरु मजबूत होता है. Because it is connected with listening. Then your taste is connected with Venus. Your tongue basically मुंह जीभ connected होते हैं Venus से. Venus is little luxurious kind of planet. तो अभी in the next slide I'll show कि कौन कौन से taste कौन कौन से planet से connected होते हैं. But yeah, your जो मुंह वाला सेंस ऑर्गन है खाने का, that is connected, and your touch is connected with Shani, Saturn. Okay, then let's move to the next slide. Yeah, now coming to the taste part. तो this is very interesting. Like किसी का कोई planet weak है ना तो वो उस taste का खाना खाया अगर तो वो strong हो जाता है. जैसे किसी को शनि से related दिक्कत है so they can eat more astringent food like लौकी, कद्दू, कसेला, हल्का सा कसेला, करेला, केला. So these are astringent food. तो इसको खाने से your शनि will become stronger. Then similarly Venus is connected with थोड़ा सा खट्टा चीज like कर्ड राइस. आश्रम में आप आओगे तो संडे को, आज ही सैटरडे को भी आजकल बनने लगे है, आफ्टरनून में देयर वाज कर्ड राइस. सो व्हेनेवर देयर इज कर्ड राइस आई ईट ओनली कर्ड राइस. सो कर्ड राइस से योर वीनस विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. एंड या इट्स वीनस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड एनर्जी. तो या जितने भी खट्टे दही और एसिडिक थोड़े से फूड होते हैं इट इज वीनस. देन स्वीट टेस्ट इज रिलेटेड विद जुपिटर. तो आपने देखा हो जितने भी पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका ऐसा करके पेट निकला रहता है और उनको मिठाइयां बड़ी पसंद होती है. कितने लोगों ने देखा है. तो या दैट्स व्हाई क्योंकि गुरु का जो असली स्वाद होता है ना जुपिटर, दैट इज मिठाई, मीठा होता है. भगवान को इसलिए हम लोग मिठाई चढ़ाते हैं काफी. देन पंजेंट टेस्ट इज कनेक्टेड विद सन. सैलीन नमक ज्यादा जिसमें नमक है वो मून से कनेक्टेड है. एंड कड़वा जो एकदम ही कड़वा, एक्चुअली करेला विल कम अंडर मार्स नॉट सैटर्न. तो करेला कड़वा टेस्ट इज कनेक्टेड विद मार्स. तो किसी का मंगल वीक है दे शुड ईट मोर बिटर फूड. उनको करेला ज्यादा खाना चाहिए, करेले का जूस पीना चाहिए डेली. दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. देन मिक्स, जितने भी मिक्स टेस्ट होते हैं दैट इज कनेक्टेड विद मर्करी. सो या Then let's take question. This is little higher level, chakras और planets का connection. क्योंकि हमारा साथ तो चक्रा पे ही सब कुछ emotions चलता है हमारी सारी बॉडी. तो पहले questions लेते हैं उसके बाद we'll come to this slide. हाँ, राहु, सोनिया जी पूछे राहु, बुध, मंगल and sun in 4th house in Lagna Kundli as well as Chandra Kundli. Please explain. हाँ, it depends कौन सी राशि में बैठे हैं. लेकिन हाँ ये तो है कि पहले हाउस में बहुत ज्यादा प्लेनेट बैठे हो ना तो थोड़ा दिमाग में थॉट्स ज्यादा आते हैं. बट यू डू मेडिटेशन, यू डू साधना, यू डू हरिओम मेडिटेशन एंड या इट विल बी गुड. इट्स नॉट गुड टू पुट ऑयल्स ऑन सैटरडे. व्हाई? नो, इट इज गुड टू ऑयल. शनि देवता पे तेल चढ़ाते हैं. टुडे आई वेंट टू शनि टेम्पल. आप सबको मैं बताता हूँ, आश्रम के पास में एक बहुत ही अच्छा सिद्ध शनि टेम्पल है. जब भी आप आश्रम आना, आश्रम से मेट्रो स्टेशन की साइड जाते हैं तो इट्स ओनली लाइक 200 meters, 5-10 minutes from ashram. So you should visit that Shani temple. It's very very powerful. Today I went there. और तेल चढ़ाना तो अच्छा होता है शनिवार के दिन. संडे को इनफैक्ट थोड़ा बोलते हैं कि संडे को तेल नहीं लगाओ, मालिश नहीं करो तेल की, स्पेशली तिल के तेल की, क्योंकि शनि का शत्रु होता है सूर्य. तो संडे को अच्छा नहीं होता, सैटरडे को तो अच्छा होता है. या one more question is there. Yeah. What if sun is weak in the chart?
सन इज बीइंग इन द चार्ट, तो सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को अर्घ दो, सूर्य नमस्कार करो, आदित्य हृदय सूत्रम पढ़ो. आई हैव स्पोकन अबाउट रेमेडीज फॉर ऑल द नवग्रहास. यू वॉच दैट वीडियो, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो. अभिषेक, यू रिमेम्बर? Yes, yes, you can see that in the playlist also. Yeah, remedies to strengthen नवग्रहास. सारे 9 ग्रहों को पूरे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, कैसे कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग बनाए, कैसे क्या क्या करें किसके लिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आया है, लग्ना लॉर्ड सैटर्न इन 6th हाउस फॉर कैप्रिकन एसेंडेंट, ये पूछ रहा है. हाँ, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है. 6th हाउस में शनि इज ओके, इट्स गुड. और लग्ना लॉर्ड है तो यार. शिखा जी का कोई क्वेश्चन है, गुरु चांडाल दोष का क्या समाधान? ये गुरु चांडाल तो पे मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूँ, तो यू वॉच माय प्रीवियस एस्ट्रोलॉजी इन डेली लाइफ वीडियो, उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट गुरु चांडाल. एंड जब आपके पास गुरु है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी चांडाल, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. Today only, today only I luckily got a appointment. Tomorrow I am traveling to Delhi. So today I don't know. ऐसे ही मैंने सोचा कि let's meet Gurudev. I just put an appointment request and yeah, I had great darshan Gurudev के योगा स्कूल में. So yeah, keep on meeting Gurudev. Keep on doing silence courses. Somebody asked me कि Sahil bhaiya, what is the easiest way to grow spiritually? So I should tell you, keep doing advanced courses and keep meeting Gurudev. This is the easiest way to grow spiritually. Yeah, Abhishek, next question. एक क्वेश्चन आया है, प्लीज प्रोवाइड प्लैनेट वाइज लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हाँ, तो इसके लिए मैंने टेस्ट की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है ना, तो आप वेजिटेबल्स और फ्रूट को खा के देखो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अपने हिसाब से बना दो लिस्ट. टेस्ट यू कैन रिकॉग्नाइज, राइट? यस यस यस, तो टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं लिस्ट. और एक क्वेश्चन आया है, इट लुक्स व्हेन वी डू योगा ऑल ग्रहस कैन बी केप्ट इन एनर्जेटिक वे, ऐसा रहता है क्या? या डेफिनेटली. योगा, चलो उसी पे आ जाते हैं. योगा कवर्स अवर 7. जस्ट लेट मी स्विच ऑन द चार्जर. या तो जब हम योगा करते हैं ना, तो हमारे सातों चक्रास पे बड़ा ही पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है. लेट मी शेयर दैट पीपीटी नाउ. या तो हमारे जो सातों चक्र होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद प्लैनेट. लाइक जो सबसे नीचे का मूलाधार चक्र होता है, दैट इज कनेक्टेड विद शनि. Then our second chakra is connected with Swadhisthana chakra. It controls the feel wali energy. So it is connected with moon also and Venus also. And third is hamara solar plexus. It is connected with Mars, Mangal, and also Jupiter a little bit. Then heart chakra. हार्ट चक्र इज कनेक्टेड विद वीनस. सो कोई मेरे को बता रहा था ना कि हार्ट अटैक और ये सब देखना, तो इट इज कनेक्टेड विद वीनस आल्सो. ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे इससे क्या है. आप लोगों ने सबने एडवांस कोर्स किया है तो देखा ही होगा क्या क्या इमोशंस कनेक्ट होते हैं. सो लेट अस डायरेक्टली कम टू द दिस पार्ट, चक्रास, एनर्जी, इमोशन. दिस इज वेरी पावरफुल. आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा, बट यू कैन लिसन इट अगेन. तो जब हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे जाती है ना, तो हमें जो स्क्रीन के राइट साइड में इमोशन दिख रहे हैं नेगेटिव वाले, एंगर, गिल्ट, हेट्रेड, फियर, ग्रीड, जेलसी, ऑब्सेशन, इनर्शिया. ओके, और जब हम सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा को हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं. ओके, तो मूलाधार में जब ऊपर चढ़ती है ऊर्जा तो बनती है वो एंथुसियाज्म. देन स्वादिष्ठान चक्र में जब ऊपर चढ़ती है ऊर्जा तो इट बिकम्स क्रिएटिविटी. देन कम्स द मणिपुर चक्र. इट गिव्स अस हैप्पीनेस. बोलते हैं ना हंसते हंसते पेट फूल गया ऐसे करके. इट गिव्स यू जनरोसिटी, कंटेनमेंट, हैप्पीनेस. फिर इसके ऊपर अनाहत चक्र में जब ऊर्जा चढ़ती है तो यू फील लव. सो गुरुदेव बोलते हैं ना, हेट्रेड इज लव अपसाइड डाउन.
तो इट इज वेरी ट्रिकी है। जो नए नए जो मतलब जिनको नया नया प्यार होता है तो वो हेट्रेड में भी बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। उसका मेन रीजन है कि आपका जो सेम चक्र आया अनाहत चक्र, दैट इज कनेक्टेड विद लव आल्सो एंड हेट्रेड आल्सो। तो जैसे ही आपकी ऊर्जा डाउन हुई किसी भी वजह से, तो आपका लव तुरंत हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई आपको हमेशा अपनी ऊर्जा चढ़ानी है। देन विशुद्धि चक्र में ऊर्जा आती है तो इट बिकम्स ग्रेटिट्यूड। देन ऊपर आज्ञा चक्र में बनता है अवेयरनेस। ओके, जैसे मंदिर का घंटा बजता है तो यहाँ पे एकदम अवेयरनेस बढ़ जाती है हमारी। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो हमारे ऊपर के दो चक्र है, सहस्रार चक्र और एक हमारे सिर से 1/2 फीट दूर यापिनी चक्र होता है। तो यहाँ तक ऊर्जा पहुंच गई तो बस देयर इज नो गोइंग डाउन, क्योंकि उनकी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होता ही नहीं है, उनका पॉजिटिव ही एस्पेक्ट होता है। सहस्रार चक्र और यापिनी चक्र, दे आर अबाउट ब्लिस एंड एब्सोल्यूट ब्लिस। So basically when you do yoga, meditation, advanced courses, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा चढ़ाते हैं। तो that's why like किसी का कुछ भी एनर्जी लेवल डाउन हो या कुछ भी हो, just do yoga, meditation, pranayam, and you will see the change in your energies and emotions. So yeah, so let's come into some remedies part also. So there are 3 types of remedies basically, astrology में बताते हैं। Shukta upay, subtle remedy, that is mantras, chanting, japas, yajnas. Then some Shambhav upay, subtlest remedy, that is meditation and grace. Sadhana, meditation and grace, Guru ki kripa. It comes in the Shambhav upay, subtlest remedy. And then comes Anupay, gross remedies. They takes care of Ayurveda, donation and all. So these are the 3 remedies. So based on the requirement और क्या क्या issues हैं, these remedies can be done. So basically if you want to learn more so yeah, basically हमें ऊर्जा चढ़ानी कैसे है, these are few more ideas, few more things you can do। कि ऊर्जा चढ़ानी है तो सबको पता है, नीचे के चक्र से ऊपर की तरफ ऊर्जा ले जानी है, एनर्जी लेवल इंक्रीज करने। हाउ यू हैव टू डू, फर्स्ट sometimes you can do fasting if you are not pitta, and eat fresh food, जितना हो सके एकदम ताजा खाना खाए। you should avoid eating बासा खाना, इवन मॉर्निंग से इवनिंग का अगर अवॉइड कर सकते हो ना तो अवॉइड, क्योंकि फ्रेश फूड खाने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जितना खाना पुराना हो जाता है उतना हमारा ऊर्जा, उसका खाने का ऊर्जा प्राणा लेवल डाउन हो जाता है। So this is one thing, this is very important. Second is pranayam, kriya and meditation, that is like a evergreen remedy. Third is silence। हम जब बहुत ज्यादा बोलते हैं ना तो हमारी ऊर्जा डाउन होती है, तो साइलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड अंडररेटेड रेमेडी टू इंक्रीज अवर ऊर्जा प्राणा लेवल्स। सो डू कीप साइलेंस। यू नो व्हाट आई डू समटाइम्स व्हेन आई गो टू स्लीप, उसके बाद से लेकर के ब्रेकफास्ट तक समटाइम आई कीप काइंड ऑफ अ साइलेंस मौन व्रत, कि रात को 10 बजे सोने के बाद से सुबह उठो, आराम से नहा दो, साधना करो, फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट करते टाइम ही यू स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक विच एवरीबडी कैन डू। रात को साइलेंस रखो, सुबह ब्रेकफास्ट तक साधना अपनी साइलेंस में करो। आई टेल यू इट इज वेरी पावरफुल, उससे आपका एनर्जी लेवल काफी बढ़ेगा। एंड कोल्ड वाटर बाथ्स, अगेन सर्दियों में भी थोड़ा सा मतलब हल्का ही गुनगुना पानी रखो, ज्यादा गर्म पानी मत रखो, तो उससे ऊर्जा बढ़ेगी। अभिषेक, यू आर लिसनिंग नो? आई थिंक यू नीड टू इम्प्रूव योर एनर्जी। कोल्ड वाटर बाथ्स, स्टार्ट टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ्स फ्रॉम टुमारो, ठीक है? फिर टोटल एग्जॉशन, नॉट गेटिंग स्लीप टेक ओवर। तो जैसे आप दिन में काम कर रहे हो ना तो पूरा एकदम 100% करो, और रात को एकदम पूरे थक के सो। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेरी गुड टू इंक्रीज द एनर्जी। हम क्या कहते हैं, बीच बीच में कभी कभी नैप ले लेते हैं ना, तो उससे फिर रात में अच्छी नींद नहीं आती। देन 6 is emotional peaks, is also kind of increase our prana. Then presence of master, this is the simplest and best thing which everybody can do। गुरु जी के पास, गुरु जी से मिलने से जो हमारी एनर्जी बढ़ती है, that is the best remedy which I believe। So that's why I'm in Bangalore most of the time। Then singing and chanting, अपना सत्संग में गाने से, chanting करने से। And last but not the least, giving without a givership and service without a doership।
जब हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो हमारी ऊर्जा चढ़ती है, बहुत चढ़ती है, अगर आप कभी करोगे ऐसा तो. सो या दिस वर द फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स. लेट्स टेक नाउ सम क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं और आगे. या संदीप जी का क्वेश्चन है, भैया मुक्ति का उपाय बताएं. हाँ, जब आपको प्राणा लेवल हाई है, आप कंटेंट हो, तो बस मुक्त हो गए. यू आर, गुरुदेव बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट, मोक्ष ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ आपको जाके मिलेगा, अलग सा रियलाइजेशन होगा, नहीं. जीते जी व्हेन यू आर कंटेंट विद, व्हेन यू डोंट हैव एनी डिजायर्स, यू आर एनलाइटेंड, यू आर एकदम मुक्त. मुक्त हो गए आप तो. कुछ कुछ है नहीं अभी, एकदम प्रेजेंट. गुरु जी के सामने आओ, ऐसा लगता है कि हाँ मोक्ष प्राप्त हो गया. आज शाम को जब मेरी बात हुई गुरु जी से, आई हैड लाइक, उन्होंने मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा था और वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो आई आस्क्ड गुरु जी आपने ऐसा बोला है, वो तो पा नहीं रहा है. तो he just said one sentence and I was like, मोक्ष. उनके मुंह से अपना नाम भी सुन लो ना, आई टेल यू, ऐसा लगता है कि बस मोक्ष प्राप्त हो गया. सो दैट इज मुक्ति. तो डू ट्राई डूइंग दैट, संदीप जी. या नेक्स्ट क्वेश्चन. सुधा जी का क्वेश्चन आया है, 8th प्लेस में सैटर्न और मून साथ में रहेगा तो चलेगा क्या? सब चलेगा, चल ही रहा है, तभी तो आप इधर आके क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट? आप इतना अच्छा सतवा टॉक्स प्रोग्राम देख रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो चल ही रहा है. दैट्स व्हाई यू हैव रीच्ड हियर. अदरवाइज ये जो नॉलेज है ना, ये एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, इसके लिए भी बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्मास चाहिए होता है. हर किसी को समझ में भी नहीं आता. व्हेन आई वाज स्टडीइंग इट इन 2016, 15-16 की बात है, व्हेन आई वाज लर्निंग इट इन बेंगलोर आश्रम अंडर वीडीएस, जब बहुत ही छोटा था, मैं यंग था. तो आई हैड माय फ्रेंड्स फ्रॉम आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई आल्सो विद मी हु वर लर्निंग. और इस सेशन के बाद उन्होंने एक हफ्ते की ये वर्कशॉप अटेंड करी और उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ चमका ही नहीं. दे वर लाइक इट इज नॉट माय कप ऑफ टी. एंड आई वाज लाइक द मोस्ट ब्राइट स्टूडेंट, लाइक आई वाज एबल टू टेल एवरीथिंग. Somehow it was there before also, luckily, but yeah, it, all the knowledge, all the wisdoms require a lot of prarabdha karmas also. So you are sitting here, that means everything is going well. Shani and moon are working well, don't worry. Yeah. एक क्वेश्चन आया है, ये भी संदीप जी का है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं अगर लोन बहुत ज्यादा हो? हाँ, तो उसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया. अभिषेक, यू वांट टू टेल द नेम ऑफ दैट वीडियो? आई थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग. फाइनेंशियल एंड एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी. वो वीडियो देखिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्व. अभी तो ऐसा हो गया अभिषेक, हर टॉपिक पे, हर क्वेश्चन पे एक एक वीडियो बन गया अपना. तो अभी मेरे को, मेरी जॉब बड़ी आसान हो गई है. कोई क्वेश्चन आता है, वॉच दिस वीडियो, वॉच दैट भैया वीडियो. आप अभिषेक जी को बोलिए हमारे को प्लेलिस्ट दे दे सबकी, हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं आपके सेशंस के साथ में, जो भी आपके पुराने हैं. इट्स ऑलरेडी डन, ये है, अब टाइप तो कीजिए एक बार. आप मेरा नाम ही टाइप करिए, आ जाता है. मेरे नाम से भी आ जाता है, मैंने खुद कोशिश करी है. इंटरनेट पे कहीं पे भी लिखिए साहिल भैया का नाम, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा वहां पे. और अपना टॉपिक भी डाल दिए. हेल्थ लिखना है तो हेल्थ का वीडियो आ जाएगा, फाइनेंस लिखना है फाइनेंस का आ जाएगा. करियर का एक और करते हैं अभिषेक, अगला ना करियर का रखते हैं थोड़ा. करियर का शायद अपना नहीं हुआ स्पेसिफिक एकदम. यस, करियर, रिलेशनशिप के भी हो चुके हैं. रिलेशनशिप करियर से भैया थोड़ा और स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं क्या? हाँ, एग्जैक्टली. आई कैन टेल लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर. ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के बारे में बता सकते हैं. या वी विल डू नेक्स्ट वन, करियर से रिलेटेड कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. एक वापस आया है, साढ़े साथी, प्लीज टेल समथिंग अबाउट साढ़े साथी. या साढ़े साथी में तो मेरी स्टोरी बड़ी फेमस हो गई. गुरु जी अभी पुणे आश्रम में बोल रहे थे कि यार तुम लोग साढ़े साथी से रहते हो. देखो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर पता है कब बनी है? जब साढ़े साथी चल रही थी उनकी. साढ़े साथी इज नथिंग टू वरी. एंड आई हैड टोल्ड आल्सो मल्टीपल टाइम्स कि when I was studying in my 10th standard, then that time my साढ़े साथी was at peak. वही 2-3 साल एकदम पीक पे थी. And I was preparing for world's toughest exam, IIT JEE, जिसको दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम बोला जाता है. But I worked hard. और in fact in my family there is nobody even went to NITs also. But I don't know, Purusharth se you can do anything. I used to work very hard, and Shani
जी became very happy on me and I cracked IIT JEE. तो या पुरुषार्थ इज अबव एवरीथिंग. गुरुदेव अभी बड़ा अच्छा कुछ सत्संग में बोल रहे थे कि एक इंसान गरीब परिवार में पैदा होगा कि अमीर परिवार में पैदा होगा, दैट इज रिटन इन देयर चार्ट, वो उनकी कुंडली में लिखा रहता है. लेकिन वो वहां से क्या करेगा, वहां से वो कितनी मेहनत कर करके अपने आप को ऊपर ले जाएगा या फिर मेहनत कर करके अपने आप को नीचे ले जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन हिज पुरुषार्थ. It totally depends on his purusharth. I'll tell you my Nana ji story. So my Nana ji was a farmer. वो ठेला चलाते थे, सब्जी और फल फ्रूट बेचते थे वो गलियों में. It's just 50 years back. And but he kept on working very very hard. फिर उन्होंने एक मंडी में दुकान ली अनाज की. And धीरे धीरे now he has like 10 shops. और उनके सब एकदम बच्चे सब अच्छे से पढ़ाई कर लिया है. And everybody is doing very good in their life. So that's how Purusharth is very important in your life. You can change everything with your effort and hard work and determination. So yeah. Next question. एक भैया please throw some light on मृत्यु सादशक योग. सदाशक योग. कौन सा योग? मृत्यु सदाशक योग. So that even I don't remember now. I have to check. मृत्यु सुदर्शन योग. साहिल जी. हाँ. ये मंगल हो तो शादी देर से होती है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई जल्दी भी हो जाती है काफी लोगों की. बस मंगल ये होता है. गुरुदेव ने पता मंगल के बारे में भी रिसेंटली बोला था. ये जब सिंबल कर रहे थे ना, तो बोले थे जैसे अंगूठा होता है, इट इज रिप्रेजेंट एनर्जी, वॉरियरशिप. तो किसी इंसान की कुंडली में शादी वाले भाव में मंगल बैठा है तो उसको थोड़ा सा एग्रेशन होगा, एनर्जी रहेगी. तो इसको बोलते हैं मांगलिक, क्योंकि शादी में हमें एनर्जी और लड़ाई झगड़े की, एग्रेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है ना, तो इसलिए उसे फिर मंगल दोष थोड़ा सा बोल दिया है. तो उसको फिर जो मंगल दोष है, सामने वाला भी मंगल दोष है, उसको भी है, तो वो मैच होगा. तो इट इज नथिंग रिलेटेड विद टाइम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है. टाइम से थोड़ा शनि का कनेक्शन है. I have spoken relationship and एक हमने इनफैक्ट अभिषेक, इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर दिस टाइम आई वाज इन दिल्ली, नवंबर के टाइम ही लास्ट ईयर आई वाज इन दिल्ली, तो विजय जी वाज देयर आई थिंक दैट टाइम in that video. So if you will search, type on the YouTube modern day matchmaking साहिल सिंह राठौर, so you can find out that video. उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया मांगलिक के बारे में एंड डिले इन मैरिज के बारे में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया. इतना सारा आपको मैंने कंटेंट दे रखा है यूट्यूब में, जस्ट एक बार खोजो तो आप. So many beautiful videos we have done. True. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं. साइनसाइटिस, अस्थमा को कैसे ठीक करें? सुदर्शन क्रिया, या एक सेकंड और एक बार मैं चैट में देख ले रहा हूँ. yes, Why do I have negative thoughts? अपराजिता का जी का क्वेश्चन. So negative thoughts, so negative जो डेफिनेशन होती है ना, दैट इज वेरी रिलेटिव, जो कि हमने अपने आप ही दे रखी है कि हाँ ये चीज नेगेटिव है. बट इफ यू विल सी कि क्या नेगेटिव होता है जिससे हमें थोड़ा सा कुछ दुख पहुंचे एंड कष्ट होए. ओके, सो यू फाइंड आउट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स वैसे तो, लेकिन हाँ आई कैन सी योर चार्ट एंड फाइंड आउट कि क्या हो रहा है. देयर इज संचित कर्मा आल्सो एंड प्रारब्ध कर्मा आल्सो. बट दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड वेरी रिसेंटली, वेरी इंटरेस्टिंग, कि हम लोग क्या कहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ये होता है कि ये चीज हमें चाहिए, और इसके अलावा अगर कुछ भी हो रहा है इधर उधर तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज समथिंग नेगेटिव. लेकिन डिवाइन को पता होता है हमारे लिए क्या बेस्ट है. ये तो जरूरी नहीं है हमें ये जो चाहिए हम सोच रहे हैं वही मिले. वो नहीं मिल रहा तो वी बिकम कि नहीं, ये दिस इज नॉट, आई एम नॉट हैप्पी. समटाइम्स यू हैव टू कीप पेशेंस एंड एक्सेप्ट व्हाट इज यू आर गेटिंग, बिकॉज व्हाटएवर यू गेट इज बेस्ट. दिस इज द फेथ यू शुड हैव. सो नेगेटिव थॉट्स भी कुछ आ रहे हैं तो उस समय के लिए शायद वो सही है, लेकिन हाँ उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यू फाइंड आउट कि फूड की वजह से आ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहे हैं. 5 चीजों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है. पहला फूड का,
दूसरा आपका वास्तु का, आपकी सराउंडिंग स्पेस कैसी। तीसरा आपकी कंपनी आसपास की एसोसिएशन कैसी है। चौथा आपका प्राणा लेवल, आपका प्राणा लेवल अगर हाई है तो नेगेटिव थॉट्स टिकेंगे ही नहीं अभी गए तो। एंड पांचवा इज पूर्व जन्म कर्मास, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प लिटिल बिट। बाकी की 3-4 चीजें यू कैन, इट्स देयर इन योर हैंड, तो यू कैन फाइंड आउट एंड वर्क ऑन इट। ओके नेक्स्ट। भैया एक क्वेश्चन आया विशाल अब्दकर जी का, निर्णय लेने में दुविधा क्यों होती है, नया बिजनेस शुरू करने में देर लगता है, क्या करें। तो आप गुरु पूजा चैंटिंग करो। डिसीजन इज रिलेटेड टू जुपिटर, गुरुदेव गाइडेंस देते हैं ना ये फिंगर। तो गुरु पूजा फेज 2 करो। गुरु पूजा फेज 2 इज सो पावरफुल। जितने भी लोग, आई सजेस्ट, कोई भी मैनेजरियल या डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है, दे शुड डू गुरु पूजा फेज 2। इज सो पावरफुल कोर्स कि आप उसके बाद तो एकदम हर चीज में करेक्ट डिसीजन लोगे। भैया एक चीज बताओ, ये ज्योग्राफी का कैसे फर्क पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में। कोई मान लो नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ तो उसका कैसे एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट रहेगा। ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट वालों का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बिल्ड देखोगे, उनके साथ आश्रम में आना आप कभी, मैं मिल पाऊंगा नॉर्थ ईस्ट वालों से, इतने फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी, इतना स्टेमिना होता है, इतना तेज भागते हैं। फुटबॉल, आई एम ऑल्सो फुटबॉल प्लेयर। तो अभी मैं और मेरा एक को टीचर है डॉक्टर विकास, सो वी वर प्लेइंग फुटबॉल, तो कोई टक्कर ही नहीं था। दे वर प्लेइंग सो फास्ट, सो फ्लेक्सिबल एंड एवरीथिंग। तो जो एटमोसफेयर होता है ना जहां इंसान पैदा हो रहा है, उससे बहुत अंतर पड़ता है। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। अभी कोई अमेरिका में पैदा हो रहा है इंसान, तो उसका स्किन कलर अलग होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, लंबाई चौड़ाई अलग होगी, बोलने का तरीका, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डिफरेंट। सो दैट्स वाई कौन कहाँ पे जन्म ले रहा है, ज्योग्राफी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी शरीर पे तो पड़ता ही ऑब्वियसली, और भी चीजों पे पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है कि जो राजस्थान एस्ट्रोलॉजी में 3 चीजें डाली जाती है। हाँ चलो, एस्ट्रोलॉजी है क्या, जो कुंडली होती है वो है क्या बेसिकली। वो है कि जब आप पैदा हुए उस समय आसमान में ग्रह कैसे थे, उसकी एक स्क्रीनशॉट, एक स्नैपशॉट है, राइट। तो बेंगलोर से मेरे को जो ग्रह दिख रहे हैं आसमान में ऐसे, दिल्ली से मेरे को वैसे थोड़ी दिखेंगे, देयर विल बी सम डिफरेंस। और अमेरिका से तो एकदम ही उल्टे दिखेंगे। अमेरिका में तो अभी सुबह हो रही होगी, यहाँ पे रात हो रही है, वहां पे सुबह हो रही होगी। तो यहाँ पे सूर्य 10th हाउस में, अगर वहां पे 1st हाउस में, 2nd हाउस में होगा। आर यू गेटिंग? ग्रह ही चेंज हो जाते हैं जगह के हिसाब से। वाह, समझ गया? तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल। वंडरफुल वंडरफुल। साहिल भैया, वैसे तो बहुत सारे सवाल है लोगों के, बट आई गेस कि हमारे पास थोड़ी सी समय की लिमिटेशन है। लाइक 70+ पीपल आर वाचिंग इट राइट नाउ। ये सुबह तक तो आई गेस 1000 तो क्रॉस करता है आपका सारा कुछ, बट वी हैव टाइम लिमिटेशंस। तो मैं सभी से यही बोलूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है, यू कैन कनेक्ट विद साहिल भैया। आप उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इज बिजी इन मीटिंग्स। तो साहिल भी एक बार आप अपना नंबर बता सकते हो कि बहुत यस, सारे माय लोग नंबर आपका इज नंबर मांग। 8900 266 433। यही नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं, उनका नंबर है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो छूट गए हैं, तो आप उनको वहां पे आप एक बार कनेक्ट करके यू कैन कनेक्ट विद हिम। एंड साहिल जी, यस। अभिषेक की शादी हो गई है, पता है ना? हाँ हाँ, अभिषेक की तो हमने ही कराई है शादी। आपने कराई? मेरे से कुंडली मिलवाई थी, हम मना करते तो शायद नहीं होती। अभिषेक 2-3 बार, अभिषेक ने तो 2-3 बार कुंडली मिलवाई। जनरली एक ही बार इंसान कुंडली मिलवाता है, अभिषेक ने 2-3 बार कंफर्म किया कि हाँ कर लू ना अभी, कर लू ना। तो यार शादी इज अ वेरी बिग कार्मिक डिसीजन। वो रिलेशनशिप एंड एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में आई शेयर कि कैसे जब शादी होती है तो जो हस्बैंड वाइफ के प्लैनेट्स होते हैं ना, कुंडलीज होती है, वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं एक दूसरे पे। तो या तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आई डोंट नो, आई शुड नॉट शेयर दिस फॉरम, कि जो शादी के बाद
लड़की के जो पाप कर्म होते हैं कुछ, तो अगर उसने किया है तो वो लड़के के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन लड़के के पाप कर्म लड़की पे नहीं जाते, लड़के के लड़के पे ही रहते हैं, तो लड़के पे थोड़ी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अभिषेक, यू हैव टू वर्क मोर हार्डर, डू मोर साधना सेवा सत्संग नाउ व्हिच इज डिफिकल्ट। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि किसी भी सिचुएशन में हम होते हैं दिन भर में, व्हेन द सत्संग इज ऑन, व्हेन सत्वा टॉक्स इज ऑन, तब हमारा पूरा का पूरा वो डिसॉल्व हो जाता है गुरु मीन्स गुरुदेव के प्रेजेंस में। जो लोग अभी भी देख रहे हैं वो भी, जैसे ये भी सेशन हुआ, इट्स सो मीन्स अपलिफ्टिंग सेशन, जो इंसान के छोटे छोटे बहुत सारी चीजें रहती है उससे वो बाहर निकाल देता है ये सेशन। जो लोग भी अभी ये YouTube में देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सेशंस जो आज हुआ, it's knowledgeable and same time we also get more connected to the master, कि जिस तरीके से, क्योंकि हम एक रहता है कि हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, लेकिन जो जिनके पास गुरु है वो थोड़ा बहुत अब उसमें चेंज आ जाता है। इसलिए साहिल भैया बोलते हैं कि आप जब नॉर्मल इंसान हो तो वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखा, लेकिन कोई आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो कर रहा है, डायनामिक्स चेंज होते हैं थोड़े से, सो इसके उपाय भी बहुत बदल जाते हैं। तो साहिल भैया के उपाय भी बहुत ऐसे रहते हैं which helps me to more get deeper in this knowledge and path. And मैं इसलिए बोलूंगा जो भी लोग अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शेयर करें ये सेशन, आप जितने भी ग्रुप में हैं सब तक शेयर करें, क्योंकि ये एज अ इंट्रो टॉक भी कहीं ना कहीं काम करता है। लोगों को पता चलता है कि आर्ट ऑफ लिविंग है क्या, एक उसकी वास्टनेस पता चलती है। एंड आप लोग जो पहली बार आए हैं, 72 प्लस पीपल who are here right now, आप लोग सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, बिकॉज डेली 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 जब आप सत्संग में आते हो, संग में आते हो, तो संग कलयुगे संग शक्ति, 70-80 लोग एक जगह एक पॉजिटिविटी के साथ एक प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, भले ही आज के टाइम में वर्चुअल ही क्यों ना हो, उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तो आपको एक अच्छे संग में दिन भर में जुड़ना एक बार बहुत जरूरी है। एंड साहिल भैया, जाने से पहले प्लीज शेयर साहिल भैया नंबर। मंजू बोहरा जी, आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल मेरे को एक बड़ी अच्छी गुरु स्टोरी अभी मेरे साथ हुई, वो मैं शेयर करता हूँ देन लेट्स कंक्लूड। कि अभी लाइक हम लोगों का आश्रम में किचन है, तो वहां पे डिनर करते हैं हम लोग। तो मैंने कुछ तो कपड़े दिए थे लॉन्ड्री पे। So morning tomorrow 6:30 a.m. I have a flight. I have to travel to Delhi, and we had this session at 9 p.m. So I was in front of laundry, and it's generally 8:30 time लिखा है, लेकिन वो I called the person. He told कि 8:45 तक open होगी, and I was thinking कि यार 8:45 open होगी तो today I'll get late for the session, और मैं कपड़े भी नहीं छोड़ सकता, tomorrow I have to go to Delhi. तो I just went there 8:25 पे, and I was praying कि यार आज टाइम पे आ जाए. So that day that guy came at 8:25 itself. मतलब 8:45 पे जो टाइम था 8:25 पे ही आ गया राम भैया. एंड ही वाज टेलिंग, मैंने कहा भैया यार आप तो बिफोर टाइम आ गए, आज क्या बात है? तो बोले गुरुजी को सब पता रहता है किसको क्या चाहिए, और वो सबकी सुनते हैं और सबको एकदम सही टाइम पे सही चीज करवा के देते हैं. उनका वाह, मतलब हमारे लॉन्ड्री वाले भैया को भी इतना ज्ञान, इतना एक्सपीरियंस है. सो या दिस इज व्हाट फेथ ऑन द मास्टर. मतलब ये छोटी छोटी सी चीज भी, मतलब इट गिव्स यू अ सेंस कि गुरुदेव मतलब किस लेवल पे जाके एक एक का मतलब ख्याल रखते हैं. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. मतलब मैंने दूसरे इंसान से बात करी, ही टोल्ड कि 8:45 ही होती है जनरली ओपन, but today because we have this session and I have to travel and I have to take clothes also, so he came like before time and he was giving me this wisdom कि गुरुदेव knows कब किसको क्या देना है. तो हम सभी को ये फेथ और विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए जो बेस्ट है वो होके रहेगा. Absolutely, So absolutely. let's conclude with this wonderful knowledge and thank you Abhishek, it was great. कल you are traveling to Delhi. या क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली से अभी ये सेशन देख रहे हैं. So, आप एयरपोर्ट के आसपास हो तो you can meet him somewhere. Yes.
अच्छा, And- तो हम फेथ रखते हैं कि आप जल्दी जल्दी वापस आओगे। हाँ हाँ, यस, True, true, true. ठीक Thank है। you.